விரைவிலே தேர்தல் நடக்கப் போறது. நம் our நாடு country नाड से बन गया नाटिल और स्पोकन में हम बोल देते हैं नाटिले. नम नाटिले विरैविले. विरैव means जल्दी. So विरैविले जल्दी ही, very soon. தேர்தல் means election. நடக்க போகிறது. நடக்க means to take place. நடக்க போறது, that means it's going to take place. நடக்க போகிறது, it's going to take place. போகிறது, போறது. That is the difference between spoken and written. நம் நாட்டில விரைவிலே, in our country, very soon, தேர்தல் election நடக்க போறது, நடக்க போகிறது. இந்த தேர்தல்ல முக்கியமாக பாஜகவுக்கும் காங்கிரசுக்கும் போட்டி இருக்கிறது. இந்த தேர்தல்ல, in this election, मुख्यமாக, मुख्यम क्या हो गया? prominent, important, that is मुख्यम. So मुख्यமாக बन गया इसका adverb, that is मुख्य तौर पर. भाजपा को, भाजपा क्या है? भारतीय जनता कच्छी. कच्छी means party. भारतीय जनता कच्छी is भाजपा. भाजपा कुम, कांग्रेस कुम. आप लोग जानते हो कि भाजपा को और कांग्रेस को. போட்டி இருக்கிறது. போட்டி means competition. स्पर्धा जिसे बोलते हैं. போட்டி இருக்கிறது कि इन दोनों के बीच में कंपटीशन है. வட இந்தியாவிலே மோதி அலை வீசுகிறது. வட means, வட India means North India. வடக்கு means north. வடக்கு means north. For example, we say வடக்கே. வடக்கே means in the north. வடக்கே. So வட இந்தியாவிலே மோதி அலை வீசுகிறது. அலை means wave. अலை means wave, लहर. मोदी की लहर चल रही है. वीसगिरद का मतलब क्या होता है? वीस means to throw. वीस means to throw. तो जब हम वेव की बात करते हैं तो वी से अலை வீசுகிறது. So, அலை வீசுகிறது means a wave is flowing. A wave is flowing or a wave is on, so to say. அலை வீசுகிறது. Let's remove this portion now. தென் இந்தியாவிலே, தென் इंडिया, जैसे यहाँ पे वड़क था, उसी तरह से साउथ को बोलते हैं तिर्क. वड़क, तिर्क. और जब साउथ इंडिया की बात करनी हो तो कह देते हैं तिन इंडिया. तिन इंडिया. So, தென் இந்தியாவிலே வெவ்வேறு மாநிலங்களிலே வெவ்வேறு. वेर का मतलब होता है दूसरा. वेर means another or different. दूसरा, different. वेव्वेर क्या हो गया? अलग अलग टाइप के.
वेव्वेरे means of different types, अलग-अलग, different types, வெவ்வேறு. So, தென்னிந்தியாவிலே வெவ்வேறு மாநிலங்களிலே, மாநிலம் क्या होती है? राज्य, state, मानिलम means state, like तमिलनाडु is मानिलम, और इसका प्लूरल बनाना हो तो बन जाएगा मानिलंगल, इम हटके इंग बन जाएगा मानिलंगल. और मानिलंगलिले राज्यों में, स्टेट्स में வெவ்வேறு கட்சிகள், கட்சி हो गया पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, வெவ்வேறு கட்சிகள் பலமாக இருக்கின்றன. बलम आप जानते हैं, पावर, स्ट्रेंथ. பலமாக बन गया एडवर्ब, बलமாக இருக்கின்றன, they are powerful. तो क्या हो गया? தென்னிந்தியாவிலே, साउथ इंडिया में வெவ்வேறு மாநிலங்களிலே, अलग-अलग राज्यों में வெவ்வேறு கட்சிகள், अलग-अलग பார்ட்டிஸ் பலமாக இருக்கின்றன, பவர்ஃபுல் है. तमिलनाडु இதுவரை, तमिलनाडु में अब तक, இதுவரை, अब तक பாஜக பூஜ்யமாக இருந்தது. பூஜ்யம், பூஜ்யம் means zero, பூஜ்யம் means zero, பூஜ்யம் zero, सिफर. So, இதுவரை பூஜ்யமாக இருந்தது. ஆனால், ஆனால் means but, அண்ணாமலை தலைமை தாங்கிய பிறகு, தலைமை means headship, leadership, तलई मतलब हेड, तलई हो गया हेड, और तलईमई उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है. मई लगाने से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है. सो तलईमई तांगिय पिறகு, तलईमई तांगुदल का मतलब होता है टू हेड समथिंग. ये एक एक्सप्रेशन है, तलईमई तांग. तलईमई तांग means to head something. தலைமை தாங்கிய பிறகு, उसके हेड बनने के बाद, कच्ची पार्टी बलम பெற்று வருகிறது. बलम strength, power, பெற்று வருகிறது. பெற்று வருகிறது क्या है? पेर means to receive. पेर means to receive. जैसे हम कहते हैं our ஒரு பரிஸ் பெற்றார். परिस means प्राइज, परिस பெற்றார். பெற்றார் बन गया जैसे पोनार की तरह பெற்றார். सो पेर பெற்றார். और पेर से पार्टिसिपल बन गया பெற்று, प्राप्त करके, பெற்று. तो जब हम पार्टिसिपल के साथ वर की फॉर्म लगा देते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. क्या है कि पार्टिसिपल प्लस फॉर्म ऑफ पेर, फॉर्म ऑफ पेर, तो ये क्या बन जाता है? दिस बिकम्स perfect continuous tense. This becomes perfect continuous tense. Now, what is perfect continuous tense? जैसे हम कहते हैं कल से बारिश हो रही है, मतलब जब कोई चीज शुरू होती है और अभी भी कंटिन्यू कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो इसमें कैसे ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया? बलम पेट्र वर्गरद के ये जो पार्टी है, ये जब से उसने ज्वाइन करा है तब से बलम रिसीव कर रही है.
तो इसी तरह से हम बहुत से दूसरे सेंटेंस बना सकते हैं। ये आपको अच्छी तरह से समझ के माइंड में बिठा लेना चाहिए, because many North Indians who come to Tamil Nadu, they are not able to learn this type of subtleties of the language, and they keep making mistakes and keep miscommunicating. So इस तरह के जो एक्सप्रेशन हैं वो आपको ये वीडियोस भी संभाल के रखने चाहिए, बार बार देखने चाहिए, और लेटर जब आप एक हद तक सीख जाओगे तो यू विल फाइंड दैट दीज आर सटल्टीज ऑफ ग्रामर which many people would not be knowing. तो इसलिए इनको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो जैसे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की और हम एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे our காலையிலிருந்து, इरुंद कैसे, इलिरुंद हम उसका क्या मतलब होता है, तब से। काலையிலிருந்து जैसे हमने करा था पहले, चेन्नईயிலிருந்து मतलब चेन्नई से। அவர் காலையிலிருந்து படித்து வருகிறார், कि सुबह से ही वो पढ़ रहा है, सुबह से पढ़ रहा है। நேற்றிலிருந்து, நேற்றிலிருந்து மழை, மழை मतलब बारिश, பெய்து வருகிறது। पेई का मतलब होता है गिरना, पड़ना, बारिश पड़ना। तो पेईद வருகிறது के हो रही है, कल से ही बारिश हो रही है। तो जब हमें इस तरह से परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाना हो, मतलब कोई चीज शुरू हुई पास्ट में और वो अभी तक भी चल रही है, तो उसमें हम क्या करते हैं, पार्टिसिपल लगा के वर की फॉर्म लगा देते हैं। So this you can keep in mind.